ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں ہم لوگ داستان گوئی کا سیشن شروع کریں گے. ہم لوگ جو داستان گوئی کرتے ہیں اس کے اندر آج ہم نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک مضمون نکالا ہے اور اس سے آپ کو ایک اقتباس سنائیں گے. لیکن اسے سنانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا تھوڑا سا تعارف آپ کو ہو جائے, اور یہ تعارف اگر ان کی ہی زبان میں ہو تو بہت اچھا لگے گا. ایک گزارش ہے کہ موبائل فونز پلیز سائلنٹ پہ کر لیں, اور اگر کسی کو جانا ہو تو بہت خاموشی سے چلا جائے کیونکہ پرفارمنس ہے, کچھ مس کر جائیں گے کہ تو آپ کے لیے برا ہوگا. خیر, تو مشتاق احمد یوسفی صاحب اپنی کتاب چراغ تلے میں اپنا تعارف کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ نام مشتاق احمد یوسفی, خاندان 100 پشت سے پیشہ آبا سپاہ گری کے سوا سب کچھ رہا. تاریخ پیدائش, عمر کی اس منزل پر آ پہنچا ہوں کہ اگر کوئی سنے ولادت پوچھ بیٹھے تو اسے فون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں. اور یہ منزل بھی عجیب ہے کہ بقول صاحب کشکول ایک وقت تھا کہ ہمارا تعارف بہو بیٹی قسم کی خواتین سے کچھ یوں کرایا جاتا تھا کہ فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں کے بھانجے ہیں, اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ فلاں کے باپ ہے اور فلاں کے ماموں ہیں. پیشہ گو کہ یونیورسٹی کے امتحانوں میں اول آیا, لیکن اسکول میں حساب سے میتھمیٹکس سے کوئی طبعی مناسبت نہ تھی, اور حساب میں فیل ہونے کو ایک عرصے تک اپنے مسلمان ہونے کی دلیل سمجھتا رہا. اب وہی ذریعہ معاش ہے. حساب کتاب میں اصولاً 2 اور 2 4 کا قائل ہوں, مگر تاجروں کی دل سے عزت کرتا ہوں کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے 2 اور 2 کو 5 کر لیتے ہیں. پہچان, قد 5 فٹ 6.5 انچ, جوتے پہنے, وزن اوور کوٹ میں بھی دبلا دکھائی دیتا ہوں, عرصے سے مثالی صحت رکھتا ہوں, اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہو تو اتمام حجت کے لیے میری مثال دیتے ہیں. جسامت, یوں سانس روک لوں تو 38 انچ کا بنیان بھی پہن سکتا ہوں. بڑے لڑکے کے جوتے کا نمبر 7 ہے جو مجھے بھی فٹ آتا. بولیا اپنے آپ پر بڑا. پیشانی اور سر کی حد فاصل اڑ چکی ہے, لہٰذا منہ دھوتے وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کروں. ناک میں بذات ہی کوئی نقص نہیں ہے, مگر بعض دوستوں کا خیال ہے کہ بہت چھوٹے سے چہرے پر لگی ہوئی. پسند غالب ہاؤس بیگ ہندی, پھولوں میں رنگ کے لحاظ سے سفید گلاب, اور خوشبوؤں میں نئے کرنسی نوٹوں کی خوشبو بہت مرغوب ہے. میرا خیال ہے کہ تازہ اور کرارے کرنسی نوٹوں کا عطر نکال کر ملازمت پیشہ حضرات اور ان کی بیویوں کو مہینے کی آخری تاریخوں میں سنبھایا جائے تو گرستی زندگی جنت کا نمونہ پیش کرے گا. پالتو جانوروں میں کتوں سے پیار ہے. پہلا کتا چوکیداری کے لیے پالا تھا, اسے کوئی چرا کر لے گیا. اب محض پر بنائے وفاداری پالتا ہوں کہ انسان کتے کا بہترین رفیق. بعض لوگ تنگ نظر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلا وجہ چڑھتے ہیں, حالانکہ اس کی ایک نہایت معقول اور منطقی وجہ موجود ہے. مسلمان ہمیشہ سے ایک عملی قوم رہے, اور وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھانا سکتے. گانے سے بھی عشق ہے, اسی وجہ سے ریڈیو نہیں سنتا. تصانیف, چند تصویریں بتانا, چند مضامین و خطوط کیوں لکھتا ہوں. اسرائیلی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جب میرا جی عمدہ تحریر پڑھنے کو چاہتا ہے تو ایک کتاب لکھ ڈالتا ہوں. رہا یہ سوال کہ کھٹ میٹھے مضامین مزاحیہ ہیں یا طنزیہ یا اس سے بھی ایک قدم آگے یعنی صرف مضامین, تو یہاں صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ بار ذرا اوچھا پڑے یا بس ایک روایتی آنچ کی کثر رہ جائے تو لوگ اسے بالعموم طنز سے تعبیر کرتے ہیں, ورنہ مزاح ہاتھ آئے تو بت نہ آئے تو خدا. یادش بخیر ذکر ہماری یار طرحدار بشارت علی فاروقی کے خسر کا, لہذا تعارف کچھ انہیں کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا. ہم نے دوبارہ سنا, اب آپ بھی سنیں. وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے. جس زمانے میں خسر نہیں بنے تھے تو پھوپا ہوا کرتے تھے, اور پھوپا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا. اس سے پہلے بھی یقیناً وہ میرے کچھ نہ کچھ لگتے ہوں گے, لیکن اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا. دراصل ہمارے یہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناطے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح اونچے اور پیش در پیش گتھے ہوتے ہیں.
ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر، کوئی 40 کے لگ بھگ تو ہوگی. لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھپن میں ہوتی تھی، ویسی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی. بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھی، لال سرخ ایسی ویسی، بالکل خون کبوتر. لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا منہ خونہ خون ہو جائے گا. ہر وقت غصے میں بھرے رہتے، جانے کیوں؟ گالی ان کا تکیہ کلام، اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا. رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے. ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجھو گالی نہیں دے سکتے تھے. ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے. کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی رائے سے اختلاف کرتا؟ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے الٹا اس کے سر ہو جاتے. ارے صاحب بات اور گفتگو تو بہت بعد کی بات ہے، بعض اوقات تو محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے. آپ کچھ بھی کہیں، ایسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں وہ اس کی تردید ضرور کریں گے. دوسرے کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے. ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا. ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، میرے منہ سے نکل گیا آج بڑی سردی ہے. کہنے لگے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی. وہ چچا سے پھوپھا بنے اور پھوپھا سے خسر الحضر، لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی. نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے. وہ قاضی نے مجھ سے پوچھا قبول ہے؟ ان کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی ضرورت نہ ہوئی، بس تھوڑی سے دو مؤدبانہ ٹھونگے مار دی جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ منعقد کے لیے ناکام کر دیا. قبلہ پڑک کر بولے بول رہے میں بولتا کیوں نہیں؟ اب ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا. ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے کہہ دیا کیا قبول ہے. آواز یکلخ اتنی زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا. قاضی اچھل کر سہرے میں گھس گیا، حاضرین کھلکھلا گیا. اب قبلہ اس پر بھی نہ رہے ہیں، اتنے زور کی ہانس ہے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے. بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا اور تمام عمر میں کرب قرابت داری اور قربت قہری دونوں میں مبتلا رہے. حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے، مگر قبلہ نے مائیوں کے دن این اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے اپٹن ملا جا رہا تھا کہلا بھیجا دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ سہرے سے باہر نہیں نکالے گا. 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقدگاہ تک آئے گا. عقدگاہ انہوں نے اس طرح کہا تھا جیسے اپنے فیض صاحب قتلگاہ کا ذکر کرتے. سچ تو یہ ہے کہ ان کی دہشت دل میں ایسی بیٹھی تھی کہ مجھے تو عروسی چھپر گھٹ بھی پھانسی ہار لگ رہا تھا. انہوں نے یہ شرط بھی لگائی باراتی پلاؤ زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی. خوب سمجھ لو میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور اگر تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی اپنے کوٹھے پر نچواؤ. اسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی. ان کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر برات چڑھے. داماد کے خوف سے وہ نوزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑاتے. قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے، وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے چہرے چال اور تیور سے کوتوال شہر لگتے. کون کہہ سکتا تھا کہ بانس منڈی میں ان کی عمارتی لکڑی کی ایک معمولی سی دکان ہے. نکلتا ہوا قد، چلتے تو قد، سینہ اور آنکھیں تینوں بیک وقت نکال کر چلتے. ساتھ کیا پوچھتے ہیں، اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اور اگر جی کھڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال بھمو کا آنکھیں دکھائی دیتی. جب دیکھو جھلاتے تنتناتے رہتے. مزاج، زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا. دائمی تیش سے لرزہ برندام رہنے کے سبب اینٹ، پتھر، لاٹھی، گولی، گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا. کچی کچی مونچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دیتی. آخری زمانے میں بھاؤں کو بھی بل دینے لگے. اکٹھا ہوا کثرتی بدن جو ململ کے کرتے سے جھلکتا تھا، چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دو پلی ٹوپی. گرمیوں میں خس کا عطر لگاتے. کیکڑی کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ. چوڑیوں کی یہ کثرت کے پاجامہ نظر نہیں آتا تھا. دھوبی الگنی پر نہیں سکھاتا تھا، علیحدہ بانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتا تھا. آپ رات کے 2 بجے بھی دروازے پہ اٹھا کر بلائیں تو چوڑی دار ہی میں برآمد ہوں گے.
اللہ میں तो یہ تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑیدار کے بغیر بھی دیکھا ہو. بھری بھری پنڈلیوں پر خوب کٹتا تھا. ہاتھ کے بنے ہوئے ریشمی زاربند میں چابیوں کا گچھا چھنچناتا رہتا. وہ تالے جو برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے اس کی چابیاں بھی ان میں محفوظ تھیں. اب یہ کہ اس تالے کی چابی تھی جو 5 سال پہلے چوری ہو گیا. محلے میں اس چوری کا برسوں چرچا رہا، اس لیے ایک چور صرف تالا، پہرا دینے والا کتا اور ان کا شجرہ نسب چرا کر لے گیا. فرماتے تھے اتنی ذلیل چوری صرف کوئی عزیز رشتہ دار ہی کر سکتا ہے. آخری زمانے میں یہ زاربندی گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل جاتا. لہٰذا کسی سے جھک کر گرمجوشی میں مسافہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے زاربند تھامتے. مئی جون میں جب ٹمپریچر 110 ڈگری ہو جاتا اور منہ پر لو کے تھپڑ سے لگنے لگتے تو پاجامے سے ایئر کنڈیشننگ کر دیتے. مطلب یہ کہ چوڑیوں کو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں بھگو کر سر پہ انگوچھا ڈالے تربوز کھاتے. خس کھانا و برفاب کہاں سے لاتے؟ اس کے محتاج بھی نہ تھے. کتنی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے. کہتے تھے میاں یہ بزنس تو پیٹ کا دھندا ہے. جب چمڑے کی جھوپڑی میں آگ لگی ہو تو کیا گرمی کیا سردی. لیکن ایسے میں کوئی شامت کا مارا گاہک آنے کے لیے تو اسے برا بھلا کہہ کر بھگا دیتے تھے. اس کے باوجود وہ انہیں کے پاس کھینچا چلا آتا تھا، اس لیے کہ جیسی عمدہ لکڑی وہ بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھی. فرماتے تھے داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی. لکڑی اور داغ تو 2 ہی چیزوں پر سجتا ہے، دل اور جوانی. تمباکو، قبام، خربوزے اور کڑے ہوئے کتے لکھنؤ سے، حقہ مراد آباد اور تالے علی گڑھ سے منگواتے. حلوہ سوہن اور ڈپٹی نذیر احمد والے محاورے دلی سے. ڈانٹ گرنے کے بعد صرف محاوروں کا گزارا تھا. گالیاں البتہ مقامی بلکہ خانہ ساز دیتے جن میں سلاست و روانی پائی جاتی. تبازاد مگر بلاغت سے خالی، بس جغرافیہ سے کھینچ دیتے تھے. باہر نکلتے تو ہاتھ میں پانوں کی ڈبیا اور بٹوا رہتا. بازاری پان ہرگز نہیں کھاتے تھے. کہتے تھے بازاری پان صرف رنڈوے، تماشبین اور بمبئی والے کھاتے ہیں. صاحب یہ نفاذت ہم نے انہیں سے سیکھی. ڈبیا چاندی کی، نقشین، بھاری، ٹھوس، جس میں جگہ جگہ ڈینٹ نظر آتے تھے جو انسانی سروں سے تصادم کے باعث پڑے. اکثر تیش میں پانوں بھری ڈبیا پھینک مارتے. بہت دیر تک تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مظلوم کے سر اور چہرے سے خون نکل رہا ہے یا بکھرے پانوں کی لاری میں غلط جگہ رنگ جمایا. بٹوا آپ کی ریاست ٹونک سے آتا تھا. کہتے تھے وہاں کے پٹوے ایسے ڈورے ڈالتے ہیں کہ ایک کھنڈی کو ذرا چھوٹو ہاتھ لگا دو تو بٹوا آپ مصاحبوں کی بادشاہوں کی طرح کھلتا چلا جاتا ہے. گٹکا بھوپال سے آتا تھا مگر خود نہیں کھاتے تھے. کہتے تھے میٹھا پان، ٹھمری، گٹکا اور ناول یہ سب نابالغوں کے شغل ہیں. شاعری سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی. ردیف اور قافیے سے آزاد شاعری سے بطور خاص چھوڑتے تھے. یوں بھی بقول شخص سے آزاد شاعری کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر نیٹ کے ٹینس کھیلنا. لیکن اس کے باوجود اردو اور فارسی کے جتنے اشعار لکڑی، آگ، دھوئیں، ایکڑی، لڑ مرنے اور خاڑی سے متعلق تھے سب یاد کر رکھتے. جب صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو شعر سے اس کا دفیہ فرماتے. آخری زمانے میں عزلت گزین اور مردم بیزار ہو گئے تھے اور صرف دشمنوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے باہر نکلتے تھے. خود کو کاسنی اور بیوی کو موتیا رنگ پسند تھا. شیروانی انہوں نے ہمیشہ موتیا رنگ کے ٹسر کی پہنی. بشارت کی زبانی تعارف ختم ہوا. اب کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی سنیے اور رہی صحیح زبان خلق سے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا. کانپور میں پہلے بانس منڈی اور پھر کوپر گنج میں قبلہ کی عمارتی لکڑی کی دکان تھی. اسی کو آپ ان کا ہیلہ معاش اور وسیلہ مردم آزاری بھی کہہ سکتے ہیں. تھوڑی بہت جلانے کی لکڑی بھی رکھتے تھے مگر اسے کبھی لکڑی نہیں کہا، سوختہ یا ہیزم سوختہ نہیں کہتے. ان کی دکان کو کبھی کوئی ناآشنا مزاج غلطی سے ٹال کہہ دیتا تو 2 سری لے کر دوڑتے. جوانی میں پنسیری لے کر دوڑا کرتے تھے. تمام عمر پتھر کے باڑ استعمال کیے. فرماتے تھے لوہے کے فرنگی باٹ بھاری اور بے برکت ہوتے ہیں. پتھر کے باٹوں کو بازوؤں میں بھر کے سینے سے لگا کے اٹھانا پڑتا ہے. اعمال تو دور رہے، کبھی کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کے پتھر کے باٹوں ہی کو تلوا کر دیکھ سکے. کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی دی ہوئی رقم یا لوٹائی ہوئی ریزگاری کو گن کر دیکھے. اس زمانے میں یعنی پچھلی صدی کی 3ری دہائی میں عمارتی لکڑی کی کھپت بہت کم تھی. سال اور چیڑ کا رواج عام تھا. بہت ہوا تو دروازے اور چوکھٹ شیشم کے بنوا لیے.
सागवान तो सिर्फ उमरा और रऊसा की डाइनिंग टेबल और गोरों के ताबूत में इस्तेमाल होती थी। फर्नीचर होता ही कहाँ था। हर एक घरों में फर्नीचर के ज़ेल में सिर्फ एक अदद चारपाई आती थी, और जहां तक हमें याद पड़ता है कुर्सी उस जमाने में सिर्फ दो ही मौकों पर निकाली जाती थी। अव्वल जब पीर फकीर वेद हकीम सियानों से मायूस होकर डॉक्टर को घर बुलाया जाए तब, दोम खतनों के मौकों पर जब एक लड़के को दूल्हा की तरह सजा बना मिट्टी का खिलौना देकर उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता, उस जल्लादी कुर्सी को देखकर अच्छे अच्छों की जिंदगी बन जाती थी। बहरहाल सच तो यह है कि जहां चारपाई का चलन हो वहां पे फर्नीचर की बिजनेस पनप नहीं सकती। इंग्लिस्तान का मौसम अगर इतना जलील ना होता और अंग्रेजों ने बर वक्त चारपाई इजाद कर ली होती तो न सिर्फ ये कि मौजूदा फर्नीचर की खुकेड़ से बच जाते, बल्कि अटवाटी कटवाटी लेकर पढ़ाने के लिए कोई ढंग की चीज तो होती। एक दफा प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस MA से हमने कहा कि भाई बकौल आपके अंग्रेज तमाम इजादात के मौजूद हैं, बेहद आसाइश पसंद हैं, बेहद प्रैक्टिकल लोग हैं, हैरत है चारपाई इस्तेमाल नहीं करते, अदवान कसने से जान चुराते हैं। जी हमारे ख्याल में एक बुनियादी फर्क जरूर जहन में रखना चाहिए, और वो ये कि यूरोपियन फर्नीचर सिर्फ बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हम किसी ऐसी चीज पर बैठते ही नहीं है जिस पर लेट ना सके। मिसाल में दरी गदीले कालीन जाजिम चांदनी चारपाई पूछा यार और पहलुए दिलदार को पेश किया जा सकता है। हाँ अलबत्ता एक चीज ऐसी जरूर थी जिसे सिर्फ बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसे तख्त कहते थे। लेकिन जब उसी पर उसे लटकाकर और लिटाकर नहला दिया जाता तो ये तख्ता कहलाता, और इस अमल को तख्ता उलटना कहते। मकसद इस तमहीद गैर दिलपजीर का ये है कि जहां चारपाई का चलन हो वहां फर्नीचर की बिजनेस पनप नहीं सकती। अब इसे शोबे इमारती कहिए या हैज़म गैर सौख्तनी, इसका भी हमेशा मंदा ही रहता कि दुकानों की तादाद गाहकों से ज्यादा थी। बेशतर ग्राहक गिरदो निवाह के देहाती होते जो जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा लकड़ी खरीदने कानपुर आते थे। इन बेचारों का जिंदगी में दो ही मर्तबा लकड़ी से साबका पड़ता, एक अपना घर बनाते वक्त और दूसरा अपना क्रिया गर्म करवाते समय। कयाम पाकिस्तान से पहले जिन सुनने वालों ने दिल्ली या लाहौर के रेलवे स्टेशन का नक्शा देखा हो वो इस छीना झपटी का बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। 1945 में हमने देखा कि दिल्ली से लाहौर आने वाली ट्रेन के रुकते ही जैसे ही मुसाफिर ने अपने जिस्म का कोई हिस्सा दरवाजे या खिड़की से बाहर निकाला, कुली ने उसी को मजबूती से पकड़कर सालिम मुसाफिर को हथेली पे रखा और हवा में अदर उठा लिया और उठाकर प्लेटफॉर्म पर किसी सुराही या हुक्के की चिलम पर बिठा दिया। लेकिन वो मुसाफिर जो दूसरे मुसाफिरों के धक्के से खुद ब खुद डिब्बे से बाहर निकल पड़े, उनका हासिल वैसा ही हुआ जैसा उर्दू की किसी नई नवीली किताब का नक्कादों के हाथ होता है। जो चीज जितनी भी जिसके हाथ लगी सर पर रखकर हवा हो गया। दूसरे मरहले में मुसाफिर पर होटलों के दलाल और एजेंट टूट पड़ते। सफेद ड्रिल का कोट पतलून, सफेद कमीज, सफेद रुमाल, सफेद कैनवस के जूते, सफेद मोजे, सफेद दांत। इसके बावजूद मोहम्मद हुसैन आजाद के अल्फाज में हम ये नहीं कह सकते कि वो चंबेली का ढेर पड़ा हंस रहा है। उनकी हर चीज सफेद और उजली होती सिवाय चेहरे के। हंसते तो मालूम होगा तवा हंस रहा है। ये मुसाफिर पर इस तरह गिरते जैसे इंग्लिस्तान में रग्बी की गेंद और एक दूसरे पर खिलाड़ी गिरते हैं। इनकी सारी तगोदौ का मकसद खुद कुछ हासिल करना नहीं बल्कि दूसरों को हासिल करने से बाज रखना होता था। मुसलमान दलाल तुर्की टोपी से पहचाने जाते। वो दिल्ली और यूपी से आने वाले मुसलमान मुसाफिरों को टूटीदार लोटे, मजदूरात और कसरत अतफाल और कीमे पराठे की भपके से फौरन पहचान लेते और अस्सलाम वालेकुम ब्रदर इन इस्लाम कहकर लिपट जाते। मुसलमान मुसाफिरों के साथ सिर्फ मुसलमान दलाल ही धींगा मुश्ती कर सकते थे। जिस दलाल का हाथ मुसाफिर के कपड़ों के मजबूत तरीन हिस्से पर पड़ता वही उसे घसीटता हुआ बाहर ले आता। जिसका हाथ लिबास के कमजोर या बोसीदा हिस्सों पर पड़ता वो बाद में उन्हें बतौर दस्ती रुमाल इस्तेमाल करता। नी मलबूस मुसाफिर कदम कदम पर अपनी सतर कुशाई करवाता। स्टेशन से बाहर आता तो लातादार पहलवान जिन्होंने अखाड़े को नाकाफी महसूस करते हुए तांगा चलाने का पेशा इख्तियार कर लिया था खुद को उस पर छोड़ देते। कोई मुसाफिर का दामन आगे से खींचता, कोई पीछे से जुलेखाई करता। आखिरी राउंड में एक तगड़ा सा तांगे वाला सवारी का दायां हाथ और दूसरा मुस्टंडा उसका बायां हाथ पकड़ के टग ऑफ वॉर खेलने लगे। लेकिन कब इसके कि हर दो फरीकैन अपने हिस्से के रान और दस्त उखेड़ कर ले जाएं, एक तीसरा फुर्तीला तांगे वाला टांगों के चिरे हुए चिमटे के नीचे बैठकर मुसाफिर को यकलक अपने कंधों पर उठा लेता और टांगे में जोतकर हवा हो जाता। कमोबेश यही नक्शा कॉपरगंज की लकड़ मंडी का हुआ करता था जिसके कल्ब में किबला की दुकान थी।
गोदाम से लूम दुकान से मुल्हक अकब में होते थे। तो गाहक पकड़ने के लिए किबला और 2-3 चिड़ीमार दुकानदारों ने ये किया कि दुकानों के बाहर सड़क पर लकड़ी के छोटे छोटे केबिन बना दिए। अब किबला का केबिन मसनद, तकिए, हुक्के, उगालदान और स्प्रिंग से खुलने वाले चाकू से आरास्ता था। केबिन गोया एक नौ का मचान था जहां से गाहक को मार गिराते, फिर से चुमकार पुचकार कर अंदर ले जाया जाता, जहां कोशिश ये होती कि खाली हाथ और भरी जेब वापस न जाने पाए। लिहाजा जैसे ही कोई शख्स कयाफे से गाहक मालूम होता, सामने नजर आता, तो दूर और नजदीक के दुकानदार से हाथ के इशारे से या आवाज देकर बुलाया। इन महाराजों को दूसरे दुकानदारों के पंजे से छुड़ाने और खुद घसीट कर अपने कछार में ले जाने के दौरान अक्सर इनकी पगड़ियां इनके पैरों से उलझ जाती। इस सिलसिले में इतने झगड़े और हाथापाई हो चुकी थी कि मंडी के तमाम व्यापारियों ने मिलकर यह पंचायती फैसला किया कि गाहक को सिर्फ वही दुकानदार आवाज देकर बुलाएगा जिसकी दुकान के सामने से वो गुजर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे दुकानदार के हल्का तशद्दुद में दाखिल होगा, कोई और उसे हरगिज़ आवाज ना देगा। इसके बावजूद सीना झपटी और कुश्तम पछाड़ बढ़ती ही गई, तो हर दुकान के आगे चूने से हदबंदी की लाइन खींच दी गई। इससे ये फर्क पड़ा कि कुश्ती बंद हो गई, कबड्डी होने लगी। बाज दुकानदारों ने मारपीट, ग्राहकों को डंडा डोली करके दुकान के अंदर ले जाने के लिए बिगड़े पहलवान और शहर के छटे हुए शोहदे और मुस्टंडे पार्ट टाइम मुलाजिम रख लिए थे। फसाद बाजारी अपनी इंतहा को पहुंची हुई थी। ये लोग दिन में नगर मंडी में गाहक को डरा धमकाकर नाकिस और कंडम माल खरीदवाते और रात को यही फरीजा बाजारे हुस्न में अंजाम देते। बहुत सी तवाइफों ने अपनी आबरू को हर शख्स ज्यादा से ज्यादा गैर महफूज रखने की गरज से इनको बतौर पे मुलाजिम रख छोड़ा। किबला ने ऐसा कोई मुलाजिम या पहलवान मुलाजिम नहीं रखा क्योंकि उन्हें अपने जोर बाजू पर पूरा भरोसा था। हाँ, अलबत्ता माल की चिराई कटाई में मार कुटाई का खर्चा भी शामिल कर लेते थे। हमें वक्त तैश का आलम तारी रहता, सोने से पहले ऐसा मूड बनाकर लेटते कि उठते ही आग खुलते ही गुस्सा करने में आसानी। गुस्से की सबसे खालिस किस्म वो होती है जो किसी इश्तियाल की मोहताज ना हो या बहुत ही मामूली सी बात पर आ जाए। गुस्से के आखिर होते होते ये तक याद नहीं रहता था कि आया किस बात पर था। सोते में भी पेशानी पर उनके माथे पर 3 बल नहीं मिटते थे। बीवी उन्हें रोजा नहीं रखने देती थी। गालिबन 1935 का वाकया है। ईशा की नमाज के बाद अपनी देरीना परेशानियां दूर होने की दुआएं मांग रहे थे कि एक ताजा परेशानी का ख्याल आते ही अचानक जलाल आ गया। दुआ ही में कहने लगे, तुमने मेरी पुरानी परेशानियां ही कौन सी रफा कर दी जो अब ये नई परेशानी दूर करेगा? उस रात मुसल्ला तय करने के बाद फिर कभी नमाज नहीं पढ़ी। मुझे गुस्से से याद आया, किसी जमाने में कन्नैलिये गलियों बाजारों में फेरी लगाने आते थे और कान का मैल निकालने पर ही क्या मौकूफ है, दुनिया जहान के काम घर बैठे हो जाया करते थे। सब्जी, गोश्त और सौदा सुलभ की खरीदारी, जचगी, पीढ़ी, तालीम, खाट खटोले की मरम्मत, अब ये कि अपनी मरम्मत भी घर बैठे हो जाया करती थी। बीवियों के नाखून नहरनी से काटने और पीठ मलने के लिए नायने घर आती थी। कपड़े भी मुगलानियां ही घर आकर सीती थी ताकि नामहरमों को नाप तक की हवा न लगे। हालांकि उस जमाने के जनाना पोशाक के जो नमूने हमारी नजर से गुजरे हैं वो कुछ ऐसे होते थे, किसी भी लेटर बॉक्स का नाप लेकर आसानी से जा सकते थे। हाँ, तो हम वाकया ये बयान करने चले थे कि गर्मियों के दिन थे। किबला अदले का कोरमा और खरबूजा तनावुल फरमाकर अपनी केबिन में कैलूला कर रहे थे कि कन्नैली ने उनके केबिन के पास खड़े होकर बड़े जोर से आवाज लगाई, कान का मैल। खुदा जाने बहुत मीठी नींद सो रहे थे या कोई बहुत ही हसीन ख्वाब देख रहे थे जिसमें गाहक उससे तिगने दामों धड़ाधड़ लकड़ी खरीद रहा था। हड़बड़ा कर उठ रहे थे। एक दफा तो दहल गए, चिट के पास पड़ी हुई लकड़ी लेकर उसके पीछे हो लिए। कमीने की ये जुर्रत कि उनके कान से फकत 1 गज दूर बल्कि पास ऐसे गुस्ताखाना अंदाज में चीखे। ये कहना तो दुरुस्त ना हुआ कि आगे आगे वो और पीछे पीछे ये, इसलिए ये कबीला इतने गुस्से में भरे होते कि अक्सर उससे आगे निकल जाते। थोड़ी दूर तक सड़क पर दौड़ने के बाद कन्नैलिया गलियों में निकल गया और आंखों से ओझल हो गया, मगर किबला अपनी छठी इसकी बताई हुई समत में मुसलसल दौड़ते रहे। और ये वो समत थी जिस तरफ कोई भी शख्स जिसके 5 हवास सलामत हो जारहाना अंदाज में लकड़ी लाठी घुमाता हरगिज़ न जाता था कि ये थाने को जाती। इस वहशियाना दौड़ में किबला की लकड़ी और कन्नैलिये का पगड़ जिसमें उसने कान का मैल निकालने के कई सारे औजार उड़स रखे थे जमीन पर आ रहे। उसमें से एक डिबिया भी निकली जिसमें उसने कान का मैल जमा कर रखा।
नजर बचा कर उसी में से तोला भर महल निकाल कर दिखा देता कि देखो ये तुम्हारे कान से निकला है। किसी के कान से गूलर के बुन के बरामद करके कहता वो जो तुम्हारे कान में टिन 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 की आवाजें आ रही थी ना, इन्हीं की थी। अगर ये भी सच है कि वो कानों की भूल भुलैयों में ऐसी दूर तक सहज सहज सलाई डालता चला जाता कि मालूम होता कानों के रास्ते आते भी निकाल कर चली जाती। किबला ने उस पगड़ को लेकर बल्ली पर लटकाया और बल्ली अपनी केबिन के सामने इस तरह गाड़ दी जैसे अगले वक्तों में कोई बेसबरा वली अहद या अगर वो ना हो तो कोई दुश्मन बादशाह सलामत का सर काटकर नेज़े पर हर किसी की इत्तला के लिए बुलंद कर देता था। उसकी दहशत ऐसी बैठी कि दुकान के सामने से बढ़ई, खटबुने, सीढ़ी लगाने वालियों और सेहरी के लिए जगाने वालों ने भी गुजरना छोड़ दिया। हद ये कि मुल्हका मस्जिद का करीब 100 मुअज्जिन भी अक़ब वाली गली से आने जाने लगा। किबला अपना माल बड़ी मेहनत, तवज्जो और मोहब्बत से दिखाया करते। मोहब्बत का इजाफा हमने इसलिए किया कि वो गाहक को तो शेर की नजर से देखते मगर अपनी लकड़ी पर शफ़क़त से हाथ फेरते। कोई सागवान का तख्ता ऐसा नहीं था जिसके रेशों के अब्र या रगों का तूरा अगर वो चाहें तो याददाश्त से कागज पर ना बना सकते हो। भाई लकड़ मंडी में वो वाहिद दुकानदार थे जो गाहक को अपना और हर शहतीन और बल्ली का शजरा नसब अजबर करा देते थे। उनका अपना शजरा नसब बल्ली से भी ज्यादा लंबा था जिस पर अपने जद्दे आला को टांग रखा। कभी भरवी सागवान के लट्ठे पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए कहते, मियां अभी इसकी उम्र ही क्या है, बच्चा है। बहुत से बहुत 80 साल, 150 साल का सागवान अरावली के जंगलों में आंधी तूफान में बिल्कुल खड़ी कमर इस्तादा रहता है। मगर साहिब है बला का सीजन, सैकड़ों बारिशों और 7 दरियाओं का पानी पीकर यहाँ पहुंचा है और इस लट्ठे पर तो मगरमच्छ ने पेशाब भी किया। ये जो कमल नयन गिरा नजर आ रही है इस पर मगरमच्छ जिस लकड़ी पर मूत दे उसको हश्र तक न दीमक लग सकती है ना आग। इस पर ख्वाजा अब्दुल मजीद जो मुंशियाना डेस्क के लिए लकड़ी खरीदने आए से पूछ बैठे। तो क्या मगरमच्छ बिजली के खंभे के बजाय दरख्त पर? जी नहीं, मगरमच्छ तो सबीले अहले इस्लाम में जंजीर से बंधे हुए टीन के गिलास से पानी पी पी के सड़क पर टहल टहल के इस्तंजा सुखाते हैं आपके वालिद माजिद की तरह। आया क़ुरान शरीफ में 24 घंटे मिजाज की कुछ यही ज्वालामुखी कैफियत तारी है। एक दफा हाजी मोहम्मद इसाक चमड़े वाले शीशम खरीदने के लिए आए। यूं तो साहेब किबला हर लकड़ी की शान में जमीन आसमान के कुल्लावे मिला दिया करते थे मगर शीशम पर सचमुच फरीफ्ता थे। अक्सर फरमाते, तख्ते ताऊस में शाहजहां ने शीशम लगवाई थी। शीशम के गुण गाहक और कदरदान तो कब्र में जा सोए मगर क्या बात है शीशम, जितना इस्तेमाल करो उतने ही जौहर खुलते। शीशम की जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ था उसी पर दादा मियाँ की विलादत हुई थी। किबला अपने हुस्न तवल्लुद और तवारत को दादा जान और चारपाई दोनों के लिए बाइस सादत और इफ्तिखार समझते थे। हाजी मोहम्मद इसाक बोले, ये लकड़ी तो कुछ साफ मालूम नहीं होती। किबला न जाने कितने बरसों बाद मुस्कुराए। हाजी साहब की दाढ़ी को टिकटिकी बांध के देखते हुए फरमाया, ये बात तो हमने शीशम की लकड़ी, कांसे की लुटिया, बाली उमरिया और चुपकी दाढ़ी में ही देखी कि जितना हाथ फेरो उतनी ही चमकती है। आला जात की शीशम की पहचान ये है कि आरा, रंदा, बर्मा सब खुंडे और हाथ शल हो जाएं। ये चीड़ थोड़ा ही है कि एक जरा कील ठोको तो अलिफ से लेकर ये तक चिर जाए। एक बात है, ताजा कटी हुई चीड़ से बन महका का एक आबशार फूट होता है, लगता है उसमें नहाया जा रहा है। जिस दिन कारखाने में चीड़ की कटाई होने वाली हो उस दिन में इत्र लगाकर नहीं आता। किबला का मूड बदला तो हाजी साहब की हिम्मत बदली। कहने लगे, ये लकड़ी तो वाकई आला दर्जे की मालूम होती है मगर सीजन नहीं लगती। सीजन सीजन कितने फाकों में सीखा है ये लफ्ज। अगर फकत सीजन ही चाहिए तो सबसे ज्यादा सीजन सामने वाली मस्जिद के गुस्ले मैयत का तख्ता है। बड़ा पानी पिया है उसने, लाऊं उसी पर निकाल दूंगा। यूं तो इनकी जिंदगी डेल कार्नेगी के हर उसूल की अव्वल ता आखिर निहायत कामयाब खिलाफवर्जी थी मगर बिजनेस में उन्होंने अपने हथकंडे अलग इजाद किए थे। गाहक से जब तक ये ना कहलवारें कि लकड़ी पसंद है उसकी कीमत इशारतन भी नहीं बताते।
वो पूछता भी तो साफ टाल जाता। अरे आप भी कमाल करते हैं, आपको लकड़ी पसंद है, ले जाइए, घर की बात है। गाहक जब कतई तौर पर लकड़ी पसंद कर लेता तो कीमत बताए बगैर हाथ फैलाकर बयाना तलब करता। सस्ता समा था, वो 2 अन्नी या 54 की साई पेश करता जब इस सौदे के लिए काफी होती, हाथ से झुटकते हुए कहते, अरे चांदी दिखाओ। यानी कम से कम एक कुलदार रुपया निकालो जो उस जमाने में 15 सेर गेहूं और सेर भर असली घी के बराबर होता। वो बेचारा शर्मा हुजूरी में 1 रुपया निकालता। किबला रुपया हाथ में लेकर हथेली पर इस तरह रखे रहते कि तसल्ली के लिए नजर तो आता रहे मगर वो झपट्टा ना मार सके। फिर थोड़ी देर बाद खुद ब खुद कहते, मुबारक हो, सौदा पक्का हो गया। फिर उसकी कीमत बताते जिसे सुनकर वो हक्का बक्का रह जाता। वो कीमत पर हुज्जत करता तो कहते, अजीब खर्च करो, साई देकर फिर करो। नहीं। अरे अभी तो रुपया देकर सौदा पक्का किया है, अभी तो इसमें से तुम्हारे हाथ की गर्मी नहीं गई और अभी फिर गए। नहीं, वो अच्छा कह दो, अच्छा कह दो ये रुपया तुम्हारा नहीं है, कहो कहो। कीमत ऐसी ना तोल कर बता दे कि काइया से काइया गाहक भी दुविधा में पड़ जाए और ये फैसला ना कर सके कि पेशगी डूबने में ज्यादा नुकसान है या इस भाव लकड़ी खरीदने में। उनके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर था। एक दफा एक सर फिरे गाहक से झगड़ा हो गया तो धोबी पाट का दाव लगाकर जमीन पर दे मारा और खुद चढ़कर उसकी छाती पर बैठ गया। मगर इस कोर्ट में भी अपनी हथेली जिस पर रुपया रखा हुआ था चिट्ठी रखी ताकि उसे ये बदगुमानी ना हो कि रुपया हथियाना चाहते हैं। दरअसल बात ये थी कि जैसी आला और बेदाग लकड़ी वो बेचते थे वैसी बकौल उनके तुम्हें बाग बहिश्त में शाखे तूबा से भी दस्तयाब न होगी। दागी लकड़ी बंदे ने आज तक नहीं बेची, 100 साल बाद भी कीमत लग जाए तो पूरे दाम वापस कर दूंगा। किबला बड़े उसूल पसंद आदमी थे। तमाम उम्र ऊंची दुकान, सही माल और गलत दाम पर सख्ती से कारबंद थे। सुना है कि दुनिया के सबसे बड़े फैशनेबल स्टोर हैरिस का दावा है कि उनके यहाँ सुई से लेकर हाथी तक दस्तयाब है। कहने वाले कहते हैं कि कीमत भी दोनों की एक ही होती है। हैरिस अगर लकड़ी बेचता तो बखुदा ऐसे ही और इन्हीं दामों बेचता। किबला की दुकानदारी और उसकी लाई हुई आफतों की कोई एक मिसाल हो तो बयान करें। कोई गाहक इशारतन या किनायतन भी उनकी किसी बात या भाव पर शक करे तो फिर उसकी इज्जत ही नहीं हाथ पैर की भी खैर नहीं। एक दफा उजरत में थे, लकड़ी की कीमत छूटते ही 10 रुपए बता दी। देहाती गाहक ने 10.25 रुपए लगाए और ये गाली देते हुए मारने को दौड़े कि झट कमाल को इतनी जुर्रत कैसे हुई। दुकान में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी रहती थी जिसके बानों को चुरा चुरा कर आरा खींचने वाले मजदूर चिल्लम में भर के सुल्फे के दम लगाते थे। किबला जब बाकायदा मुसल्ला होकर हमला करना चाहते तो उस चारपाई का सेरवा यानी सरहाने की पट्टी निकाल कर अपने दुश्मन यानी गाहक पर झपटते। अक्सर सेरवे को कुचकाते हुए फरमाते थे, अजब सख्त जान है, आज तक इसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ। लठ रखना बुज़दिलों और गंवारों का वतीरा है, लाठी चलाना कसाई कुंजड़ों गुंडों और पुलिस वालों का काम है। इस्तेमाल के बाद सेरवे की फर्स्ट एड करके यानी अंगोछे से अच्छी तरह झाड़ पहुंच के वापस झलंगे में लगा देते। इस तरीक़े वारदात में गालिबन ये हिकमत पोशीदा थी कि चारपाई तक जाने और सेरवा निकालने के वक्फे के दौरान अगर गुस्से को ठंडा होना है तो हो जाए और अगर उनके मातूब की बीमारी और अक्ल ज़ायल नहीं हुई है तो वो अपनी टांगों के इस्तेमाल में मजीद बुखल से काम न ले। एक कदीम चीनी कहावत है कि लड़ाई के जो 370 पैतरे दानाओं ने गिनवाए हैं उनमें जो पैतरा सबसे कारामद बताया गया है वो ये है कि भाग। इसकी तस्दीक हिंदू देवमाला से भी होती है। रावण के 10 सर और 20 हाथ थे फिर भी मारा गया। इसकी वजह हमारी समझ में तो यही आती है कि भागने के लिए सिर्फ 2 टांगे थी। किबला हमेशा खुफिया थे, कहते थे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी शख्स की ठुकाई करने से पहले मैंने उसको खबरदार न किया हो। क्या शेर है वो भला सा, हाँ पश्चा से सीखे शेवा मर्दान की कोई, जब कस्बे खून को आए तो पहले पुकार दे। किबला की हैबत सबके दिलों पर बैठी थी बजुज दाएं जानिब वाले दुकानदार के। वो कन्नौज का रहने वाला निहायत खुद सर हद छुट बदमुआमला और बदजबान आदमी था। चंद साल पहले तक अखाड़े में बाकायदा जोर करता था, पहलवान सेठ कहलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गाहक किबला की सरहद में 3/4 दाखिल हो चुका था कि पहलवान सेठ उसे पकड़कर घसीटता हुआ अपनी दुकान में ले गया और किबला महाराज महाराज पुकारते ही रहे। थोड़ी देर बाद वो उसकी दुकान में घुस कर ग्राहक को छुड़ा लाने की कोशिश कर रहे थे
کہ پہلوان سیٹھ نے ان کو وہ گالی دی جو یہ خود سب کو دیا کرتے تھے. بس پھر کیا تھا, قبلہ نے اپنے اسلحہ خانہ خاص یعنی چارپائی سے پٹی نکالی اور ننگے پیر دوڑتے ہوئے اس کی دکان میں دوبارہ داخل ہوئے. گھر نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی اور اولین غفلت میں اپنا دانت توڑوا کر مصالحتی کارروائی سے ریٹائر ہو گیا. دنیا دان پہلوان سے دکان چھوڑ کر وقت بھاگا. قبلہ اس کے پیچھے سرپٹ. تھوڑی دور جا کر اس کا پیر ریل کی پٹڑی میں الجھا اور وہ منہ کے بل گرا. قبلہ نے جاریا پوری طاقت سے ایسا وار کیا کہ پٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. معلوم نہیں اس سے چوٹ آئی یا ریل کی پٹڑی پر گرنے سے وہ دیر تک بے ہوش پڑا رہا. اس کے گرد خون کی تلیاسی بن گئی. پہلوان سیٹھ کی ٹانگ کے ملٹیپل فریکچر میں گینگرین ہو گیا اور ٹانگ کاٹ دی گئی. فوجداری مقدمہ ہو گیا. اس نے پولیس کو خوب پیسہ کھلایا اور پولیس نے دیرینہ عداوت کی بنا پر قبلہ کا اقدام قتل میں چالان پیش کر دیا. تعزیراتیں ان کی اور بہت سی دفعات لگا دی. قبلہ نے دیکھا, کہا کہ ٹانگ کا نہیں, تعزیرات ہند کا ملٹیپل فریکچر ہوا ہے. پولیس گرفتار کر کے لے جانے لگی تو بھولی بھالی بیوی نے پوچھا, اب کیا ہوئے گا؟ قبلہ کی بیوی ہمیشہ گھبراہٹ میں بڑے بھول پن سے اپنے مضافاتی لہجے میں کہتی, اب کیا ہوئے گا. ہوگا کی جگہ ہوئے گا ان کے منہ سے بہت پیارا لگتا تھا. اس ایک فقرے میں وہ اپنی ساری سراسیمگی, معصومیت, بے بسی, مخاطب کے علم نجوم اور اس کی بے طلب مدد پہ بھروسہ سبھی کچھ سمو دیتی تھی. اور قبلہ اس کے جواب میں ہمیشہ بڑے اعتماد اور تمکنت سے دیکھیں گے کہہ کر ان کی تسلی کر دیتے تھے. اس بار بھی جب پولیس گرفتار کر کے لے جانے لگی تو کندھے اچکاتے ہوئے کہا, دیکھیں گے. عدالت مجسٹریٹی میں بیچ بچاؤ کرنے والے کا حق کا دان اور آلہ قتل یعنی چارپائی ماں خون پلائی ہوئی پٹی کے بطور ایگزیبٹس پیش ہوئے. مقدمہ سیشن سپرد ہو گیا. قبلہ کچھ عرصے ریمانڈ پر جوڈیشل حوالات میں رہے تھے. اب باقاعدہ خونیوں, ڈاکوؤں, جیب کتروں اور عادی مجرموں کے ساتھ رہنا پڑا. 3-4 مچیٹوں کے بعد وہ بھی قبلہ کو اپنا چچا کہنے اور ماننے لگے. عدالت میں فوجداری مقدمہ چل رہا تھا. کرائم کہتے تھے کہ بھائی سزا ہو جائے گی اور پھانسی لگ گئی. گھر میں ہر پیشی کے دن رونا پیٹنا مچتا. پولیس انہیں سارے شہر کا چکر دلا کر عدالت میں پیش کرتی اور پہلوان سیٹھ سے حق الخدمت وصول کرتی. بھولی بھالی بیوی کو یقین نہیں آتا تھا. ایک ایک سے پوچھتی, ارے کیا سچ مچ کی ہتھکڑی پہنائی تھی؟ عدالت کے اندر اور باہر قبلہ کے تمام دشمنوں یعنی سارے شہر کا ہجوم ہوتا. سارے خاندان کی ناک کٹ گئی. مگر قبلہ نے کبھی منہ پر تولیہ اور ہتھکڑی پر رومال نہیں ڈالا. گرد کے دوران بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے تو ہتھکڑی جھنجھن جھنجھن کرتی. رمضان آیا تو کسی نے مشورہ دیا, ارے نماز روزہ شروع کر دیجئے. اپنے کانی پور کے مولانا حضرت تو روزے میں چکی بھی پیسا کرتے تھے. میں شاید تھوڑا ہی ہوں, یہ نام ہوگا ہمیں روزگار سہ نہ سکا. بیوی نے کئی مرتبہ پوچھوایا, اب کیا ہوئے گا؟ ہر بار ایک ہی جواب ملا, دیکھیں گے. ایک دن شام کو جیل میں ان کا بھتیجا کھانا اور جوئیں مارنے کی دوا لے گیا. دوا کے اشتہار میں لکھا گیا تھا اس کے ملنے سے جوئیں اندھی ہو جاتی ہیں, پھر انہیں پکڑ کر آسانی سے مارا جا سکتا ہے. جو اور لیک مارنے کی مروجہ ترکیب بھی درج تھی. یعنی جو کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ رکھو اور دائیں انگوٹھے کے ناخن سے چک سے کچل دو. اگر جو کے پیٹ سے کالا یا گہرا ہونا بھی خون نکلے تو فوراً ہماری دوا اکسیر جاری نوس مصفی خون پی کر اپنا خون صاف کیجیے. بچے میں یہ ہدایت دی تھی, دوا کا کورس اس وقت تک جاری رکھیے جب تک کہ جو کے پیٹ سے صاف شدہ سرخ خون نہ نکل جائے. قبلہ نے اپنے بھتیجے کو جنگلے کی اس طرف سے کہا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ. پھر اس سے کہا کہ خدا یہ دنیا اس جیل سمیت سرائے فانی ہے. میری بات غور سے سنو, یہ میرا حکم بھی ہے اور وصیت بھی. لوہے کی الماری میں آڑے وقتوں کے لیے 2000 روپے رتی کے اخباروں کے نیچے رکھایا تھا. یہ رقم نکال کر اللہ شہر کا نام ڈھونڈا ہے اسے دے دینا اور کہنا کہ ان چھیوں کی ایسی تھکائی کرے کہ گھر والے سور کو پہچان سکیں. یہ کہہ کر ایک اخبار کا مسئلہ ہوا پرزا بھتیجے کو تھما دیا جس کے حاشیے پر ان 6 گواہان استغاثہ کے نام درج تھے جن کو پٹوانے کا انہوں نے جیل میں اس وقت منصوبہ بنایا جب ایسی ہی حرکت پہ انہیں آج کل میں سزا ہونے والی تھی. سزا ہو گئی. 1.5 سال قید بامشقت. فیصلہ سنا, سر اٹھا کر اوپر دیکھا, گویا آسمان سے کہہ رہے ہوں دیکھ رہا یہ کیا ہو رہا ہے, ہاؤ فیکٹ. پولیس نے ہتھکڑی پہنائی. قبلہ نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا.
जेल जाते हो बीवी से कहला भेजा। आज तुम्हारे जद्दे आला की रूह पुरफुतूह किस कदर मसरूर होगी, किस कदर खुश नसीब बीवी हो तुम कि तुम्हारा दूल्हा, जी हाँ, ये यही लफ्ज इस्तेमाल किया। एक हरामजादी की ठुकाई करके मर्दों का जेवर पहने जेल जा रहा है, लकड़ी की टांग लगवाकर घर नहीं आ रहा, 2 रकात नमाज शुक्रानी की पढ़ना। भतीजे को ताकीद की, हवेली की मरम्मत कराते रहना, अपनी चची का ख्याल रखना, उनसे कहना कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, दिल भारी ना करें, और हाँ चुम्मे को कासमी दुपट्टा ओढ़ना न छोड़ें। बीवी ने पूछवाया, अब क्या होएगा? जवाब मिला, देखेंगे। 2 साल तक दुकान पर ताला पड़ा रहा। लोगों का ख्याल था कि जेल से छूटने के बाद तिबला कहीं चुपचुपाते कहीं और निकल जाएंगे, मगर तिबला जेल से छूटे जरा जो बदले हो, उनकी रीढ़ की हड्डी में जोड़ नहीं थे। एक जापानी कहावत है कि अगर बंदर दरख्त पर से जमीन पर आ रहे तब भी बंदर ही रहता है। सो वो भी जेल से टार्जन की तरह आऊ चिंगाड़ते हुए बाहर निकले, सीधे अपने आबाई कब्रिस्तान गए, वालिदैन की कब्र की पाइंती की खाक उठाकर सर पर डाली, फातिहा पढ़ी और कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। अगले दिन दुकान खोली, केबिन के सामने बल्ली गाड़कर बल्ली के ऊपर बढ़ाई से एक लकड़ी की टांग बनवाकर लटकवा दी। उसे सुबह शाम इस तरह रस्सी से उतारते चढ़ाते थे जैसे उस जमाने में छावनियों में यूनियन जैक उतारा चढ़ाया जाता था। जिन नादेंदों ने 2 साल से रकम दबा रखी थी उनको धमकी आमेज खतूत लिखकर भेजे और नीचे नाम के आगे सजा याफ्ता इस तरह लिखा जैसे लोग डिग्रियां या खिताबात लिखते हैं। यानी जैसे जेल गए थे वैसे ही जेल काटकर वापस आ गए। तनतने और आवाज के कड़के में जरा फर्क ना आया। इस असना में अगर जमाना बदल गया तो उसमें उनका कोई कसूर ना था। अब उनकी राय में कतईयत के अलावा फकतियत भी शामिल हो गई थी। उनका फरमाया हुआ मुस्तनद तो पहले ही था, अब मुख्तमिम भी हो गया। स्याह मखमल की रामपुरी टोपी और ज्यादा तिरछी हो गई, यानी इतनी झुकाकर टेढ़ी ओढ़ने लगे कि बाईं आंख ठीक से खोल नहीं सकते थे। अब कभी बीवी घबरा के पूछती कि अब क्या होएगा तो उसके जवाब में देखते हैं की जगह देख लेंगे और देखती जाओ कहने लगे। रिहाई के दिन नजदीक आए तो अपनी दाढ़ी के इलाके के बाद अपनी गुप्तेदार मूंछों में शामिल कर लिए, जो अब इतनी घनी हो गई थी कि उन्हें एक हाथ से उठाते तब कहीं एक लुकमा खाने का मुंह में रख पाते। जेल उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। 2 साल तक दुकान बंद रही। बीवी ने घबरा कर पूछा, अब क्या होएगा? बीवी बस तुम देखती जाओ। अब के दुकान चली और ऐसी चली कि औरों ही को नहीं खुद उन्हें भी हैरत हुई। वो अब भी अपनी दुकान की केबिन में उसी ठस्से से गांव तकिए की टेक लगाकर बैठते थे, मगर जाविया जरा पसर गया था। अब पैरों का रुख फर्श की बनिस्बत आसमान की तरफ ज्यादा। जेल में सुकूनत पजीर होने से पहले वो गाहक को हाथ के मुल्तजियाना इशारे से बुलाते थे, अब महज अंगुश्त शहादत के खफीफ से इशारे से तलब करने लगे। उंगली को इस तरह हरकत देते गोया डामाडोल पतंग को ठुमकी देकर उसका किबला दुरुस्त कर रहे हैं। हुक्के की नहर में 1 फुट का इजाफा कर लिया। हुक्का पीते कम गुड़गुड़ाते ज्यादा था। बदबूदार धुएं का छल्ला बनाकर इस तरह हवा में छोड़ते कि गाहक की नाक में नथ की तरह लटक जाता। उनका लंगड़ा दुश्मन यानी पहलवान सेठ कुछ दिनों बाद दुकान बढ़ाकर कहीं और चला गया। ये बात विवाद हर एक को धमकी देने लगे, साले को बल्ली पर लटका दूंगा। हैबत का ये आलम कि इशारा तो बहुत बात की बात है, अगर वो किसी गाहक की तरफ निगाह उठाकर भी देख ले तो कोई दुकानदार उसे आवाज नहीं लगाता। अगर वो आज खुद किसी और दुकान में चला भी जाए तो कोई उसे लकड़ी नहीं दिखाता था। एक दफा यूं भी हुआ कि कोई राहगीर यूं ही मुंह उठाए सड़क पर चला जा रहा था कि किबला ने उसे हाथ के इशारे से अंदर आने को कहा। जिस दुकान के सामने से वो गुजर रहा था उसका मालिक और मुनीम उसे जबरदस्ती घसीटते हुए किबला की दुकान में ले आया। वो रूहान सा होकर कहने लगा, भैया मैं तो मूलगंज पतंगों के पेज देखने जा रहा था भाई। फिर यकायक उनका कारोबार ठप हो गया। वो कट्टर मुस्लिम लीगी थे, इसका असर उनकी बिजनेस पर पड़ा। फिर पाकिस्तान बन गया। उन्होंने अपने नारे को हकीकत बनते देखा और दोनों की पूरी कीमत अदा की। ग्राहकों ने आंखें फेर ली, लकड़ मंडी के चूहे शेर हो गए। अजीज और अकारिब जिनसे वो तमाम उम्र लड़ते झगड़ते नफरत करते रहे, एक एक करके पाकिस्तान चले गए। तो एक झटके से ये इंकिशाफ हुआ कि वो इन नफरतों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और जब इकलौती बेटी और दामाद भी अपनी दुकान बेच खोज कर कराची सिधारे तो इन्होंने वे अपने खैमे की तन्नाबे काट डाली। दुकान औने पौने एक दलाल के हाथ बेची। लोगों का कहना था बेनामी सौदा है, लेकिन दलाल की आड़ में दुकान दरअसल उसी लंगड़े पहलवान सेठ ने खरीद कर इनकी नाक काटी है। हफीज सा शुबा तो किबला को भी हुआ था, अगर अपनी बला से बूम बसे या हुमा रहे वाली सूरत हाल थी। एक ही झटके में पीढ़ियों के रिश्ते नाते टूट गए
और किबला ने अपने पुरखों की जन्मभूमि छोड़कर उनके ख्वाबों की सरजमीन का रुख किया। कानपुर से हिजरत करके कराची आए तो दुनिया ही और थी। अजनबी माहौल, बेरोजगारी, बेघरी उस पर मुस्तजाब। अपनी आबाई हवेली के 10-12 फोटो खींच कर ले आए थे। अरे जरा ये पोस्ट तो मुलाहिजा फरमाइए, और ये इशारा तो कमाल का है। अरे एक को हर आए गए को दिखाते हुए कहते ये छोड़कर आए हैं। जिन सरकारी दफ्तरों में मकान के अलाटमेंट के सिलसिले में दरखास्तें लिखी थी, उनके आला अफसरान को भी तस्वीरी सबूत इस्तेहकाक दिखाते हुए कहते ये छोड़कर आए हैं। उनकी बास्केट की जेब में और कुछ हो ना हो, हवेली का फोटो जरूर रहता था। कराची के फ्लैटों को कभी माचिस की डिबिया, कभी दड़बे, कभी काबुक कहते, मगर जब 2 महीने जूतियां चखाने के बावजूद किसी काबुक में भी सर छुपाने को जगह न मिली तो आंखें खुली। अहबाब ने समझाया कि फ्लैट 1 घंटे में मिल सकता है, कस्टोडियन की हथेली पर पैसा रखो और जिस फ्लैट की चाहो चाबी ले लो। मगर किबला तो अपनी हथेली पर पैसा रखवाने के आदी थे, वो कहाँ मानते। महीनों भूखे प्यासे परेशान हाल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, जिंदगी भर किसी के मेहमान न रहे थे। अब बेटी दामाद के यहाँ रहने का अजाब भी सहा। हर दुख, हर अजाब के बाद जिंदगी आदमी पर अपना एक राज खोल देती है। बोध गया की छांव तले गौतम बुद्ध भी ऐसी ही दुख भरी तपस्या से गुजरे थे। जब पेट पीठ से लग गया, आंखें अंधे कुओं की तह में बेनूर हुई और हड्डियों की माला में बस सांस की डोरी अटकी रह गई, तब गौतम बुद्ध पर भी एक भेद खुला था। जैसा और जितना आदमी दुख भोगता है, वैसा ही भेद उस पर खुलता चला जाता है। निर्वाण ढूंढने वाले को निर्वाण मिल जाता है, और जो दुनिया की खातिर कष्ट उठाता है, उसे दुनिया रास्ता देती चली जाती है। सो गली गली धक्के खाने और दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाने के बाद किबला के कल्बे हज़ीन पर कुछ इल्का हुआ, और वो ये कि कायदे कानून दानाओं और जाबिरों ने कमजोर दिल वालों को काबू में रखने के लिए बनाए। जो शख्स हाथी की लगाम ही तलाश करता रह जाए, वो उस पर कभी चढ़ नहीं सकता। जाम उसी का है जो आगे बढ़कर साफी को जामो मीना समेत उठा ले, बल्फाज़ दीगर जो आगे बढ़कर ताला तोड़ डाले, मकान उसी का हो गया। कानपुर से चले थे तो अपनी जमा जत्था यानी शजरा, स्प्रिंग से खुलने वाला चाकू, अख्तरी बाई फैजाबादी के 3 रिकॉर्ड, मुरादाबादी हुक्के और सुराही के सब कैरियर स्टैंड के अलावा अपनी दुकान का ताला भी ढोकर ले आए। खास तौर पर अलीगढ़ से बनवा कर मंगवाया। 3 सेर से कम का ना हो। मज़कूर आवारा इनका होने के बाद अपने लिए बंस रोड पर एक आला दर्जे का फ्लैट मुंतखब फरमाया। मार्बल की टाइल्स, समंदरी हवा के रुख पर खुलने वाली खिड़कियां जिनमें रंगीन शीशे लगे हुए थे। फ्लैट के ताले पर अपने जंग आलूदा अलीफ ताले की एक ही ज़र्ब से फ्लैट में अपनी आबादकारी बिला मिन्नत सरकार कर ली। फ्लैट पर काबिज हुए यही कोई 3-4 माह गुजरे होंगे कि एक रोज किबला बैठे अपने चूड़ीदार का घुटन्ना रफू कर रहे थे कि किसी ने बड़े गुस्ताखाना अंदाज में उनके दरवाजे को खटखटाया। मतलब ये कि उनके नाम की तख्ती को फटफटाया। किबला ने हड़बड़ा कर दरवाजा खोला तो आने वाले ने खुद का तारुफ यूं कराया जैसे अपने ओहदे की चपड़ा उठाकर उनके मुंह पर दे मारी। कस्टोडियन महकमा की प्रॉपर्टी, बड़े मियां मकान का लाट में आर्डर दिखाओ। किबला ने हवेली का फोटो निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये छोड़कर आए हैं। उसने फोटो में नोटिस ना लेते हुए कदर दृष्टि से बड़े मियां सुना नहीं, मकान का अलाटमेंट आर्डर दिखाओ। किबला ने बड़ी रसान के साथ अपने बाएं पैर का सरीन शाही जूता उतारा और इतनी ये रसान से कि उसको खबर तक ना हुई कि ये क्या करने वाले हैं, इसके मुंह पर मारते हुए बोले, ये शाहरों का अलाटमेंट आर्डर। कार्बन काफी मुलाहिजा फरमाइएगा। उसने आज तक यानी ताज हमें तजलील, रिश्वत ही रिश्वत खाई थी, जूते कभी नहीं खाए। फिर कभी पलट कर उधर का रुख ना किया। किबला ने बड़े जतन के साथ ली मार्केट में अपने लिए लकड़ी की एक छोटी सी दुकान का डोर डाला। बीवी के दहेज के जेवर, वैल्यूलेस स्पॉट की बंदूक औने पौने बेच कर कुछ माल उधार खरीदा। अभी दुकान ठीक से चली भी न थी कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उधर आ निकला। रसीदें, रोकड़ बही, खाते, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ तलब अलगे दिन किबला हमसे फरमाने लगे, अरे सुना आपने, महीनों जूतियां चखाता, दफ्तरों में अपनी औकात खराब करवाता फिरा, किसी ने पलट के ना पूछा कि भैया कौन हो। अब दिल लगी देखिए, कल एक इनकम टैक्स का 30 माह खान दंदनाता आया, लपक कबूतर की तरफ सीना फुला है। मैंने साले को ये छोड़कर आए हैं।
चंद्राना पूछने लगा कि ये क्या है। हमने कहा हमारे यहाँ इसे महल सरा कहते हैं। सच झूठ का हाल तो कैसा जाने कि उन्हीं से रिवायत है कि इसी महल सरा का एक बड़ा फोटो फ्रेम करवाकर अपने कागज की दीवार में कील से ठोक रहे थे कि दीवार के उस पार वाले पड़ोसी ने आकर उनसे कहा, कील जरा 1 फुट ऊपर ठोके तो मैं दूसरे सिरे पर अपनी शेरवानी टांग दूंगा। घर में डाल दिया या नहीं गोबन भी आती तो उसे भी दिखाते हुए कहते, ये छोड़कर आए हैं। उस हवेली का फोटो हमने भी बाहर खा लिया। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कैमरे को मोटा नजर आने लगा, लेकिन किबला कैमरे के ज़ोफ़ बसारत को अपने ज़ोर बयान से यूं दूर फरमा देते। यूं भी माजी हर शय के गिर्द एक रूमानी हाला खींच देता, गुजरा हुआ दर्द भी सुहाना लगता। जब आदमी का सब कुछ छिन जाए तो या तो मस्त मलंग हो जाता है या किसी फैंटेसी लैंड में पनाह लेता है। न हो अगर ये फरेब पैहम तो दम निकल जाए आदमी। शजरा और हवेली भी ऐसी ही जायमा थी। कबीला को 2 गम थे। पहले का जिक्र बाद में आएगा कि वो जामुसल था, दूसरा उतना उनका अपना नहीं था जितना उनकी बीवी का, जो बेटे की तमन्ना में भूली जा रही थी। उस गरीब ने कितनी मन्नतें मानी, कबीला को शरबत में नक्श घोल घोल कर पिलाए, उनके तकिए के नीचे तावीज रखे, मज़ारों पर चादरें चढ़ाई। 50 मील के दायरे में कोई ऐसा मज़ार न रहा होगा जिसके सराहने खड़े होकर वो इस तरह फूट फूट कर न रोई हो कि अहले कब्र के पसमानदगान भी इस तरह न रोए होंगे। उधर कबीला अपने आप को किसी जिंदा पीर से कम नहीं समझते। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बीवी औलादे नरीना की मन्नत मांगने नामहरमों के मज़ारों पर आने जाने लगी है तो बहुत खफा हुए। जब वो बहुत खफा होते तो खाना पीना छोड़ देते, हलवाई की दुकान से रबड़ी मोतीचूर के लड्डू और कचौरी लाकर खाते। दूसरे दिन उन्हें बीवी काश्मीरी दुपट्टा ओढ़ के मना लेती। जब मज़ारों की हाजिरी पर कदमन बढ़ी तो बीवी बहुत रोई धोई। कबीला आखिरकार कुछ पिघले, उन्होंने मज़ार पर जाने की इजाजत दे दी, मगर इस शर्त के साथ मज़ार का मकीन जात का कम्बोह न हो। कम्बोह मर्द और गजल गो शायर से पर्दा लाजिम है, खाह वो मुद्दा ही क्यों ना हो। एक बेटी थी, वो उन्हें अजीज से अजीजतर होती गई। बीवी को सब्र आ गया, कबीला को इस हद तक सब्र आ गया कि अक्सर फरमाते, खुदा बड़ा रहीम और करीम है, उसने बड़ा फजल किया कि बेटा ना दिया। अगर मुझ पर पड़ता तो सारी उम्र जलील और ख्वार होता, अगर ना पड़ता तो ना खलक को आँख कर देता। कबीला मुदम्मम, बदलिहाज, मुंह फट, मशहूरी नहीं थे, वो किसी की दिल से बल्कि बेदिली से भी इज्जत नहीं करते। दूसरे को हकीक समझने का कोई ना कोई जवाब जरूर निकाल ले। मसलन अगर किसी की उम्र उनसे 1 महीना कम भी हो तो उसे लौंडा कहते, और अगर 1 साल ज्यादा हो तो बुढ़ाऊ। कराची को उन्होंने और उनको कराची ने पहली ही नजर में मुस्तरद कर दिया। उठते बैठते कराची में कीड़े डालते, शिकायत का अंदाज कुछ यूं होता, अरे मच्छर है या मगर मच्छर, कराची का मच्छर DDT से भी नहीं मरता, सिर्फ कव्वालों की तालियों से मरता है। या गलती से किसी शायर को काट ले तो बावला होकर बेऔलादा मरता है। नमरूद मरदूद की मौत नाक में मच्छर घुसने से वाक़ हुई। कराची के मच्छरों का शजरा नसब कई नमरूदों के वास्ते से उसी मच्छर से जा मिलता है। और जरा जबान तो मुलायजा फरमाइए। मैंने पहली मरतबा एक साहब को पट्टे वाले को पुकारते सुना तो मैं समझा भाई अपने कुत्ते को बुला रहे हैं। मालूम हुआ यहाँ चपरासी को पट्टे वाला कहते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ फड्डा और लफड़ा होता रहता है। तो कहते हैं उर्दू में इस सूरत हाल के लिए कोई लफ्ज नहीं है। भाई मेरे, उर्दू में ये सूरत हाल भी तो नहीं है। लफ्ज और सूरत हाल बम्बई वाले अपने साथ लाए हैं। नीर तकीनीर ऊंट गाड़ी में मुंह बांधे बैठे रहे, अपने हमसफर से इसलिए बात न की कि ज़बान गैर से अपनी ज़बान बिगड़ती है। मीर साहब कराची में होते तो बखुदा सारी उम्र मुंह पर ढाका बांधे फिरते, यहाँ तक के डाकुओं का सब भेष बनाए फिरने पर किसी डकैती में धर लिए जाते। मत टोंक वालों को अमरूद को सफरी कहते तो हमने भी सुना था। यहाँ अमरूद को जाम कहते हैं, और उस पर नमक मिर्च की बजाय साहिब लगा दे तो मुराद नवाब साहिब लसकेला होते हैं। अपनी तरफ विक्टोरिया का मतलब मलकटोरिया होता था। यहाँ किसी तरकीब से 10-12 जने एक घोड़े पर सवारी गांठ में तो उसे विक्टोरिया कहते हैं। मैं 2 दिन लाहौर रुका था, वहां देखा कि जिस बाजार में कोयलों से मुंह काला किया जाता है वो हीरा मंडी कहलाती है। अब यहाँ नया फैशन चल पड़ा है।
गाने वाले को गुलकार और लिखने वाले को कलमकार कहने लगे। मियाँ, हमारे वक्तों में तो सिर्फ नेकोकार और बदकार हुआ करते थे, अगर और गले से ये काम नहीं किया जाता था। मैंने बिहार कॉलोनी, लालू खेत और चाकीवाड़ा का चप्पा चप्पा देखा है। 14-15 लाख आदमी जरूर रहते होंगे, लेकिन कहीं किताब और इतिहास की दुकान नजर न आई, कागज तक के फूल दिखाई न दिए। कानपुर में हम जैसे शुरफा के घरों में कहीं ना कहीं मोतिया की बेल जरूर चढ़ी होती थी। हुजूर वाला, यहाँ मोतिया सिर्फ आंखों में उतरता है। हद हो गई। कराची में करोड़पति लखपति सेठ लकड़ी इस तरह नपवाता है जैसे कमखाब का पार्चा खरीद रहा है। लकड़ी दिन में 2 फीट बिकती है और बुरादा खरीदने वाले 50। मैंने बरसों उपलों पर पकाया हुआ खाना भी खाया है, लेकिन जो खाना बुरादे की अंगीठी पर पकेगा वो सिर्फ 2 की मूर्तों के 40वें की मुनासिब है। ऐसी बिजनेस माना कि रुपया बहुत कुछ होता है, मगर सभी कुछ तो नहीं। जर को हाजत रवा करने वाला काजी उल हाजात कहा गया है, तस्लीम। लेकिन जब ये खुद सबसे बड़ी जरूरत बन जाए तो वो सिर्फ मौत से रफा होगी। मैंने तो जिंदगी में ऐसी कानी खुतरी लकड़ी नहीं बेची, न सोख तनी न फरोख तनी। अरे बढ़ई की ये मजाल कि छाती पे चढ़ के कमीशन मांगे, न दो तो माल को गंदे अंडे की तरह कयामत तक सहते रहो। ना हुआ कानपुर, बिछौले से साले की नाक उतारकर हथेली पे रखता कि जा अपनी जुड़वा को 3 महल में दे देना। अक्सर ख्याल आता है कि अगर फरिश्ते उन्हें जन्नत में ले गए जहां मोतिया धूप होगी और कासनी बादल, तो वो शायद बाबे बहिश्त पे पहुंच के छिटक कर रुक जाएं। रिजवान जल्द उन्हें अंदर दाखिल होने का इशारा करेगा तो वो सीना ताने उसके करीब जाकर कुछ दिखाते हुए कहेंगे, ये छोड़ कर आए हैं